پھر سعدیہ اقرا اور لائبہ کو وہ بتانے لگی جو اس نے اپنی والدہ سے سیکھا تھا۔ میری امی نے بتایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی اور شیطان نے عورتوں کو اپنا لشکر کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شیطان مردوں کی نسبت عورتوں سے زیادہ گناہ کرواتا ہے۔ حضرت بن صالحہ فرماتے ہیں کہ شیطان عورتوں کو خطاب کر کے کہتا ہے، اے عورتوں، تم میرا آدھا لشکر ہو اور میرے ایسے تیر ہو کہ جس کو تمہاری وجہ سے مارتا ہوں وہ نشانے سے خطا نہیں ہوتا، اور تم میری بھید کی جگہ ہو اور میری حاجت پوری کرنے میں قاصد کا کام کرتی ہو۔ سعدیہ نے اپنی والدہ کی بات دہراتے ہوئے کہا، بالکل درست فرمایا، عورتیں شیطان کا جال ہیں اور انہی کی وجہ سے اکثر گناہ کرواتا ہے۔ اقرا نے اس کی بات میں حامی بھری۔ چلیں گراؤنڈ میں، بیل لگ گئی ہے، لائبہ نے کہا، اور تینوں اپنی بکس اٹھاتی چلی گئیں۔ اقرا جاتے جاتے وہ پتا وہیں بینچ کے اوپر رکھ گئی جسے وہ ہاتھ میں تھامے ہوئے تھی۔ فرسٹ پیریڈ آج اسلامیات کا تھا۔ سعدیہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور اقرا لائبہ انٹر کی۔ السلام علیکم، تقریباً تمام اسٹوڈنٹس نے کھڑے ہو کر کہا۔ کچھ اسٹوڈنٹس خاموش بیٹھے رہے جسے دیکھ کر مس عارفہ کو بہت برا لگا، مگر وہ اگنور کر گئیں۔ وعلیکم السلام، مس عارفہ نے باقی اسٹوڈنٹ سے کہا۔ اٹینڈنس لیتے وقت مس عارفہ کو اچھا لگا تھا سعدیہ کو باحجاب دیکھ کر۔ پوری کلاس میں وہ واحد تھی جو حجاب کیے ہوئے تھی، وہ بھی مکمل۔ آج جو بات میں بتاؤں گی وہ یہ ہے، جو پہلے سلام نہ کرے اس کو اجازت مت دو، مس عارفہ نے کلاس کے حالات دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ اسٹوڈنٹس کلاس میں ایکٹیو تھے تو کچھ بیزار۔ حدیث میں ہے، ایسے شخص کو اجازت نہ دو جو سلام میں پہل نہ کرے، مس عارفہ نے آج کی اچھی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس آئے اور بغیر سلام کے اندر آنے کی اجازت طلب کرے تو ایسے شخص کو اندر آنے کی اجازت مت دو۔ یہی قرآن مجید سے بھی مفہوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دینا بھی غلط ہے اور اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، مس عارفہ نے کہا اور بک سے مین ٹاپک پڑھانے لگی، ساتھ ساتھ وقفے سے کوئی نہ کوئی سوال بھی پوچھ لیتی۔ وہ تینوں بریک ٹائم میں اپنی پسندیدہ جگہ سیڑھیوں پر موجود تھیں اور کوئی نہ کوئی وقفے سے بات کر لیتی یا ایک دوسرے سے ہنسی مذاق۔ اقرا آپی، ایک بات پوچھوں؟ سعدیہ نے کہا۔ سعدیہ، پوچھ لیا کرو جو پوچھنا ہو، اجازت ضروری نہیں ہے ہر بار، اقرا نے مسکرا کر کہا۔ جی ٹھیک، ہمیں پردہ کس کس سے کرنا چاہیے؟ سعدیہ نے سوال کیا۔ اچھا سوال ہے۔ ہمیں پردہ ان سے کرنا چاہیے جو نہ محرم ہیں اور ان سے نہیں جو محرم ہیں۔ محرم وہ ہے جس سے آپ پردہ نہیں کرتے، یعنی والد، بھائی، ماموں، والدہ اور والدہ کا باپ، شوہر اور شوہر کا باپ۔ شوہر کے باپ سے اس صورت میں پردہ کرنا ضروری ہے جب آپ کو لگے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ اگر اچھے صفت کا ہے تو پھر پردہ ضروری نہیں۔ پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ننگے سر ہی اس کے سامنے چلے جاؤ۔ سر کو اچھے سے ڈھانپ کر جاؤ، اور نامحرم وہ ہیں جس سے پردے کا حکم قرآن میں آیا ہے، یعنی چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھپھو زاد اور باقی تمام مرد سوائے محرم رشتوں کے۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ اقرا نے اسے بتا کر پوچھا۔ جی آپی، بہت بہت جزاک اللہ، میں رات سے سوچ رہی تھی کہ پردہ کس کس سے ضروری ہے۔ آپ نے ہمیشہ کی طرح میرے اس سوال کا بھی جواب دے دیا۔ جو بھی سوال ہو پوچھ لیا کرو بنا ہچکچائے، اقرا نے کہا۔ یار لائبریری چلیں؟ لائبہ نے اداسی سے کہا، جو کافی دیر سے کہیں نظریں جمائے ہوئے تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اقرا نے اس کی آواز میں اداسی محسوس کر کے کہا۔ کچھ نہیں، بس بور ہو رہی ہوں، لائبہ نے خود کو کمپوز کر کے کہا۔ اچھا اوکے، چلتے ہیں، اقرا نے کہا تو دونوں اٹھ گئیں۔ ابھی وہ مشکل 3 سے 4 قدم ہی چلی ہوں گی کہ زویا اقرا کے سامنے آ گئی۔ ہیلو مائی سسٹر، زویا نے کہا تو اقرا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اوپس، سوری، میں تو بھول گئی کہ تم ایک نیک خاتون ہو
जो हाय की बजाय सलाम करती है। सो मिस इकरा, अस्सलाम वालेकुम, जोया ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा। इकरा ने लबों को हल्की सी जंबिश देकर जवाब दिया। वैसे सादिया फंदी और लाइबा खान, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी प्यारी दोस्त इकरा की नेक्स्ट मंथ शादी है? जोया ने उनके गिर्द घूम कर कहा। जहाँ लाइबा और सादिया पर यह खबर बॉम्ब बनकर गिरी थी, वैसा ही हाल कुछ इकरा का भी था। क्या बकवास है ये जोया? इकरा ने कुछ देर गुस्से से दबी दबी आवाज में पूछा। लो, इसमें बकवास कौन सी है? ये तो हकीकत है कि तुम्हारी शादी सजावल भाई से हो रही है, वो भी अगले माह। कल ही तो तुम्हारे सामने मामा ने ये फैसला किया है, क्या तुम्हें नहीं मालूम? जोया ने आखिर में मसनूई हैरत से पूछा। इकरा तो सजावल का नाम सुनते ही सकते में चली गई थी। वो कैसे एक ऐसे शख्स से शादी कर सकती है जो उसे बेहिजाब करना चाहता है? सजावल भाई से शादी? इकरा ने सदमे से दो चार कैफियत से कहा। ओह कम ऑन इकरा, अब तो सजावल भाई सूट नहीं करता तुम्हारी जुबान पर। मंगनी तक तो फिर भी ठीक था, पर शादी होने वाली है, अब भी भाई, जोया ने तंजिया लहजे में कहा। इकरा के दिल ने शिद्दत से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह ऐसा ना हो, ये झूठ हो। ऐसा हुआ तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी। जब हम अपने रब को शिद्दत से याद करते हैं या दुआ मांगते हैं तो अमूमन एकदम से मांगी हुई दुआ कबूल हो जाती है। अब न जाने इकरा की दुआ कबूल हुई थी या नहीं। इकरा बिना जोया को जवाब दिए वहाँ से चली गई। लाइबा और सादिया भी उसके पीछे ही चली गई। टूट जाए तुम्हारी अकड़ भी कुछ ही दिनों में, जोया ने उसकी पुश्त पर नजरें जमाए हकारत से कहा। इकरा, तुमने मुझे भी नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो रही है, लाइबा ने हैरत और सदमे से मिली जुली कैफियत में कहा। आप भी, मैं तो आपको अपने घर लाने का सोच रही थी, हमेशा के लिए। मैंने मामा से भी बात की थी, मगर आपकी तो शादी होने वाली है। सादिया ने अफसुर्दगी से अपना गम बयान किया। इकरा ने उन दोनों की बातों का कोई जवाब ना दिया। यार इकरा, कुछ बोलोगी या यूं ही मुंह पर ताला लगा कर रखोगी? लाइबा ने उसके खामोश रहने पर चिढ़कर कहा। प्लीज़ लाइबा, सादिया, फिलहाल खामोश हो जाओ। इकरा ने बाकायदा हाथ जोड़े तो वो दोनों एक दूसरे को देखती खामोश हो गईं। इकरा घर पहुंची तो सजावल पूरी फैमिली के साथ आया हुआ था। सब हंसी खुशी बातों में मसरूफ कह कहे लगा रहे थे। इकरा सबको सलाम करके वहां से चली गई। हद है, इस लड़की में ज़रा सी तमीज़ नहीं है कि मंगेतर और ससुराल वाले आए हैं तो ज़रा कुछ देर बैठ ही जाऊं। सजावल की वालिदा ने मिसिस अनवर से शिकवा किया। बस क्या कह सकते हैं, ये तो ऐसी ही है, मिसिस अनवर ने गुस्से से भरे लहजे में कहा। कोई ना, मेरा बेटा सुधार देगा, सारी अकड़ ख़त्म कर देगा। क्यों सजावल, सही कहा ना? सजावल की वालिदा ने कहा और आखिर में सजावल से पूछा। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा, सजावल ने खबासत से हंसकर कहा तो वो दोनों भी हंस गईं। आप सजावल भाई से शादी कभी मत करना, वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। सजावल की छोटी बहन, जो कि सबकी बातें सुनकर कुछ देर पहले इकरा के कमरे में उससे बात करने आई थी, उसे नमाज पढ़ता देखकर रुक गई। जैसे ही इकरा ने सलाम फेरा तो फौरन उसने कहा, मैं जानती हूँ अनम कि तुम्हारा भाई मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, इसलिए सिर्फ रब से ही दुआ कर सकती हूँ और कुछ नहीं। इकरा ने एक नज़र 10 साला अनम को देखकर अफसुर्दगी से कहा। तो आप भी, अल्लाह ताला आपकी बात सुन लेंगे? अनम ने उसके पास बैठकर मासूमियत से पूछा। हाँ अनम, अल्लाह मेरी बात सुनेंगे, अल्लाह अपने बंदों की हर बात सुनता है। इकरा ने उसकी दाहिनी गाल पर हाथ रखकर कहा। मैं अल्लाह से बात करूंगी तो वो सुनेंगे? अनम ने दोबारा सवाल किया। जी बिल्कुल सुनेंगे, तुम बातें करके तो देखो, अल्लाह को अपना दोस्त बना लो, वो तुम्हारी हर बात सुनेगा और रास्ता भी दिखाएगा। इकरा ने मुस्कुरा कर कहा। आप ही, फिर मैं अल्लाह से बात करूंगी वो आपकी शादी भाई से ना होने दे, और आप भी अल्लाह से बात करना। अच्छा आप ही, मैं छत पर आसमान को देखकर अल्लाह से बातें करने जा रही हूँ, आप आएंगी मेरे साथ? आप भी आ जाइए।
अनम ने सर हिलाकर कहा और भागकर छत की जानिब जाने लगी। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मेरे मालिक, मेरे हक में जो बेहतर है वो अता कर। या अल्लाह, मेरी राहों को आसान फरमा दे। अगर ये तेरी जानिब से आजमाइश है तो मुझे इसमें कामयाब कर। या अल्लाह, मैं एक ऐसे शख्स से कैसे शादी कर सकती हूँ जो मुझे तेरी रज़ा से दूर करना चाहता है, जो मुझे गुनाहों की दुनिया में लाना चाहता है, जो मुझसे मेरी पहचान, मेरा हिजाब दूर करना चाहता है। एक मुसलमान औरत की पहचान उसके ज़ेवर नहीं है, उसके हिजाब से है, और वो ये पहचान ख़त्म करना चाहता है। या अल्लाह, ऐसे लोगों से हर लड़की की हिफाजत फरमा। मेरे मौला, मेरी भी हिफाजत फरमा। इकरा ने अनम के जाते ही अपने रब की बारगाह में हाथ उठा दिए, जो सबकी सुनता है। आंसुओं से तर आंखें लिए वो रब से मांग रही थी। खुद के लिए दुनिया से नहीं मांगा, बस अपने रब से मांग, जो अता करने के बाद दुनिया वालों की तरह रुसवा नहीं करता। इकरा ने नमाज अदा करने के बाद अपने बाबा को वीडियो कॉल की, जो उन्होंने फ़ौरन ही उठा ली थी। इसका मतलब था वो इंतज़ार कर रहे थे इकरा की कॉल का। अस्सलाम वालेकुम बाबा, इकरा ने बात का आगाज़ ही सलाम से किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी शहज़ादी? अनवर ने सलाम का जवाब देकर पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बाबा, आप कैसे हैं? इकरा ने जवाब देकर उनका हाल अहवाल पूछा। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, अनवर ने कहा। छोटी मोटी बातों के बाद इकरा ने उनसे वो बात पूछी जो वो पूछना चाहती थी। बाबा, आप कब तक आएंगे? इकरा ने अपने वालिद से फ़ोन पर बात करते हुए कहा। इकरा के वालिद, जो कि एक बिजनेस टूर की वजह से बाहर थे 2 हफ्तों से। मेरी शहज़ादी, बस 1-2 दिन और हैं, फिर आ जाऊंगा, अनवर ने प्यार से कहा। बाबा, जल्दी आ जाएं प्लीज़, इकरा ने तकरीबन रोते हुए कहा। बच्चे, बात क्या है, आप रो क्यों रही हैं? अनवर ने परेशानी से पूछा। बाबा, वो मामा मेरी शादी सजावल भाई से, इकरा कहते ही रोना शुरू हो गई। वो इतनी कमज़ोर ना थी, पर सामने जान लुटाने वाला बाप था, जिसके सामने वो दुनिया की कमज़ोर लड़की बन जाती थी। हर बात शेयर कर सकती थी, रो सकती थी उनके सामने। इकरा, बच्चे, आप फिक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं कल ही आता हूँ, और आपकी शादी हरगिज़ उस आवारा शख्स से नहीं होने दूंगा। अनवर उसकी अधूरी बात से ही समझ चुके थे कि अब उनकी वाइफ का नया मसला क्या है, और जो वो मसला खड़ा कर चुकी है। इसलिए इकरा को कुछ देर वो समझाकर फ़ोन रख चुके थे। अब इकरा भी मुतमईन सी थी, उसे पता था उसका बाप, उसकी ताकत उसके साथ है। मामा, आपको पता है इकरा आपी की शादी तय हो गई है, सादिया ने अफसुर्दगी से कहा। वो जब से कॉलेज से आई थी तब से ही अफसुर्दा थी। शायद यही लिखा हुआ था, बस अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, आमीन, नजमा बेगम ने सादिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। पर मामा, इकरा आपी खुश नहीं है। मुझे लगता है आपी की शादी उनकी मर्जी के बिना हो रही है। ये यूं कहना सही होगा कि आपी की मर्जी के खिलाफ शादी कर रहे हैं, सादिया ने कहा। ये तो गलत बात है, उसकी रजामंदी नहीं ली गई। हालांकि हमारा इस्लाम ज़बरदस्ती शादी की इजाज़त नहीं देता, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों की रजामंदी लेना ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल बड़े फैसले कर देते हैं और फिर इस फैसले को पत्थर की लकीर बना देते हैं। बड़ों के किए गए फैसले अमूमन दुरुस्त होते हैं, मगर काफ़ी बार दुरुस्त नहीं भी होते। हमारा इस्लाम कहता है लड़की और लड़के की रजामंदी लो, क्योंकि उन दोनों ने ज़िंदगी गुजारनी है। मगर कहाँ समझते हैं ये बात सब, नजमा बेगम ने जवाब दिया। तो मामा, इस्लाम में जब है तो लोग क्यों नहीं मानते, सादिया ने पूछा। हम मुसलमान इस्लाम पर अमल करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, मगर हर शख्स अगर इस्लाम की बताई बातों पर अमल करने लग जाए तो ये दुनिया जन्नत न बन जाए, नजमा बेगम ने कहा। उनसे कुछ दूर खड़ा कोई उनकी बातों को गौर से सुनने में मसरूफ था, साथ ही कुछ दिमाग में भी चल रहा था, जिस पर अमल करने के लिए उसने अपने कदम सज्जाद सादिया के वालिद की जानिब कदम बढ़ा दिए, जो कि स्टडी में फाइल्स में उलझे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप?
सादिया ने इकरा से मिलते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, और आप कैसी हो? इकरा ने जवाब दिया। आज वो काफ़ी रिलैक्स थी। उसे यकीन था कि अल्लाह ने जो भी उसकी किस्मत में लिखा है बेहतरीन होगा। अल्लाह के बाद उसे अपने वालिद पर यकीन था कि वो उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं भी ठीक, सादिया ने जवाब दिया। इकरा आप भी, क्या पर्दा सिर्फ बाहर आते जाते ही करना चाहिए, घर में नहीं? सादिया ने पूछा। घर में भी हमें खुद को ढांपना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास बहुत से शयातीन होते हैं और शयातीन हम इंसानों से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इसलिए हमें घर में अपने सर को और बालों को दुपट्टे से ढांप कर रखना चाहिए ताकि शयातीन की हम पर बुरी नज़र ना पड़े, इकरा ने कहा। सही कहा आप भी। और घर में भाई या बाबा भी तो होते हैं, बेशक वो महरम हैं, लेकिन उनके सामने भी हमें अपना सर ढांपना चाहिए, सादिया ने कहा। बिल्कुल, इकरा ने उसकी बात में हामी भरी। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, क्या बातें हो रही हैं? लाइबा ने सलाम करके पूछा। वालेकुम अस्सलाम, दोनों ने जवाब दिया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पर्दे का समझा रही थी, इकरा ने कहा। अच्छा जी, लाइबा भी उनके साथ बैठ गई। कोई नफूस उन तीनों को देख रहा था और बहुत हिम्मत करके उन तक बात करने के लिए सामने खड़ा हुआ। लाइबा का उसे देखते ही गुस्से से मुंह बन गया, सादिया का भी। अस्सलाम वालेकुम, आओ तानिया बैठो, इकरा ने दोनों को घूरकर तानिया से कहा। वालेकुम अस्सलाम जी। तानिया थोड़ी बहुत कंफ्यूज थी। उन तीनों से आज लाइबा और सादिया ने इकरा के इशारे पर उसे जगा दी। वो इकरा, मुझे आपसे कुछ पूछना था, तानिया ने बात का आगाज किया। जी जी पूछे, इकरा ने मुस्कुराकर कहा। वो मैं भी आपकी तरह हिजाब करना चाहती हूँ, पर कैसे करूँ, क्योंकि मुझे हिजाब बांधना नहीं आता। और मुझे क्या करना होगा हिजाब के लिए? तानिया ने एक साथ ही सारे सवाल पूछे। हिजाब करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और करना तुम्हें कुछ नहीं है, बस अपने इस इरादे को पुख्ता करना है। लोग बातें करेंगे, बेशुमार करेंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। शैतान अपने हरबे इस्तेमाल करके तुम्हें राह रास्त से पीछे हटाने के लिए तुम्हारे दिल में वसवसे पैदा करेगा। बस उस लम्हे तुमने खुद को मजबूत बनाना है। शैतान के वसवसों को खुद पर हावी नहीं करना और ना ही लोगों की बातों को। बस अल्लाह पर तवक्कल रखना है। इंशाल्लाह एक दिन तुम्हारी हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, इकरा ने उसके सवालों के जवाब में कहा। बस इतना सा ही करना होता है। मैं समझती थी पता नहीं ऐसा क्या है जो लोग पर्दा करने वालों की राहों में रुकावट पैदा करते हैं, मुझ समेत। मैं तो आप सबको परेशान करती थी। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता था हिजाब और बुर्के वाली लड़कियों को देखकर। मैंने अक्सर देखा है बाहर जहाँ कहीं कोई बुर्के और नकाब वाली औरत या लड़की होती है तो मर्द अपनी निगाहें झुकाकर पीछे हो जाते हैं, मगर जहाँ कोई नीम चुस्त लिबास में नजर आए तो उस पर नजरें गाड़ देते हैं। इसलिए मुझे गुस्सा आता है और वो गुस्सा पर्दा करने वालियों पर उतार देती हूँ। तानिया ने आखिरी बात अफसुर्दा लहजे से कही। तानिया, तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? इकरा ने पूछा। क्यों? तानिया ने कहा। पता है, जब गोश्त खुला हुआ होता है तो सब शिकारी जानवर जो गोश्त खोर होते हैं वो उस पर झपट पड़ते हैं, मगर जब गोश्त पैक होता है अच्छे से तो वो उस तक नहीं पहुंचते क्योंकि वो पैक होता है। इसी तरह जब एक लड़की नंगे सर, नंगे मुंह और चुस्त लिबास में बाहर जाती है तो जो शिकारी अपने शिकार के लिए घात लगा के बैठे होते हैं वो उस पर झपट जाते हैं, यानी बुरी नज़र रखते हैं। और जब वो मुकम्मल इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुकम्मल खुद को ढांप कर जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होती उस पर बुरी नज़र डालने की, इकरा ने उसे मिसाल देकर कहा। और पता है, हया ईमान का हिस्सा है। ज़ाहरी पर्दे के साथ साथ निगाहों को भी बाहया रखना होता है। ये ना हो कि आप पर्दा करें, बुर्का पहनें, हिजाब करें, लेकिन आंखों में हया ना हो, तो ज़ाहरी पर्दे की भी कोई ज़रूरत नहीं जब आंख में हया ही नहीं, लाइबा ने कहा। बिल्कुल, हया ईमान का बेहतरीन हिस्सा है, लेकिन आज के ज़माने में हयादार लड़की और हयादार लड़के को बेवकूफ़, अनपढ़, जाहिल और दकियानूस यानी ज़माना जहालत के लोग कहकर पुकारा जाता है।
جبکہ حدیث مبارکہ ہے حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور بے ہدہ گوئی جفا ہے اور جفا جہنم ہے۔ دین پر چلنا حیا میں شمار ہوتا ہے، جیسے سادگی سے پردہ کرنا، نظروں کو نیچے رکھنا، سر جھکا کر چلنا، اور مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ نظریں جھکا کر چلیں۔ ہم مسلمان اسلام پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر ہمیں یہ سب پرانے زمانے کے اطوار لگتے ہیں اور ہم ماڈرنزم کے چکر میں بے حیا کی راہ پر نکل آئے ہیں۔ آج عورت کے حیادار ہونے اور مرد کے غیرت مند ہونے کو دقیانوسی کہنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ اقرا نے کہا، اتنے میں کلاس کا ٹائم ہو گیا تو چاروں ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہتی اپنی اپنی راہوں پر چل دی۔ السلام علیکم بابا۔ اقرا جیسے ہی کالج سے لوٹی تو لاؤنج میں اپنے بابا کو پا کر بہت خوش ہوئی اور آگے بڑھ کر ان کے سامنے سر جھکا کر سلام کیا۔ والد کے آنے کی خوشی میں وہ یہ دیکھ ہی نہ پائی کہ وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ وعلیکم السلام بچے، انور نے اقرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیسے ہیں بابا اور کب آئے آپ؟ اقرا نے کہا اور نقاب اتارنے لگی، مگر انور نے ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ اشارے سے آس پاس دیکھنے کا کہا۔ السلام علیکم۔ اقرا نے آس پاس بیٹھے لوگوں کو تھوڑا سا کنفیوز ہو کر سلام کیا۔ ایک چہرے کے علاوہ سب چہرے انجانے سے تھے۔ سامنے سجاد اور ان کی اہلیہ نجمہ بیگم موجود تھیں، ساتھ میں اقرا کی پھوپھا بھی موجود تھیں۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔